ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا ضرور نہ بھولیں۔ پلیز بیل آئیکن دبائیں، آل نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ صدیق اکبر چڑھ رہے تھے، کسی نے پوچھا ابو بکر اتنی اوپر اس طرح گئے کیسے؟ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا میں تو اٹھا کے لے جا نہیں سکتا تھا، لیکن جب کمزوری محسوس کرتا تو حضور کے تلووں کو دیکھتا اور تلوے دیکھ کر کے چومتا، تلووں کے جلووں میں گم تھا اور غار ثور پہ پہنچ چکا تھا۔ میرے امام کہتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاؤ، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اور صدیق اکبر نے کہا حضور پہلے میں جاتا ہوں، دیکھو جانثاری کس کو کہتے ہیں، وفا کس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام سے پہلے گئے اور غار کے اندر کوئی سیٹنگ تھی معاذ اللہ کہ کچھ نہیں ہوگا، اندھیرا ہے، غار ہے، روشنی نہیں ہے۔ صدیق گئے تو دیکھا جگہ جگہ سوراخ، واقعہ نگاری مقصود نہیں صرف اشارہ۔ صدیق اکبر نے اپنی چادر پھاڑ دی اور پھاڑ کر کے بھر دیا، ایک بچ گیا وہاں پر پیر رکھ دیا، انگوٹھا یا ایڑی رکھ دیا اور حضور کو بلایا اور حضور آئے لیٹ گئے۔ اب کون کون ہے؟ غار میں دو ہی لوگ ہیں، وہاں کوئی تیسرا نہیں ہے، اور فرمایا تیسرا جو تھا وہ خدا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اللہ اکبر۔ وہ دو تھے اور حضور لیٹے ہیں اور صدیق اکبر بیٹھے ہیں، تو کیفیت کیا ہوگی؟ جب لیٹنے والا گود میں لیٹے گا اور بیٹھنے والا لے کے بیٹھے گا تو لیٹنے والے کا دل اور بیٹھنے والے کا دل دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک کے لوگ جو ہے تلاوت کریں گے، قیامت تک لوگ کعبے کا طواف کریں گے، لیکن ابو بکر صدیق تمہاری عظمت پہ قربان، کوئی قرآن کا مصحف پڑھے گا اور تم اس وقت چہرے مصطفیٰ پڑھ رہے تھے جب کوئی اور ان کو دیکھنے والا وہاں موجود نہ تھا، اور حضور کا دل ابو بکر کے مقابل میں تھا، گویا کہ حضور اپنے دل کی تجلیاں ابو بکر صدیق کے دل پر ڈال کر ابو بکر کے دل کو مضبوط کر رہے تھے۔ لیکن سن لو یہ نبی کی شان ہے، جس نے نبی کے لیے قربانی دی نبی نے بڑھ کر کے صلہ دیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں صدیق اکبر غار میں پہلے پہنچی اور رسول اللہ کے لیے غار کو اس قابل بنایا کہ حضور آ سکے، حضور نے صلہ یہ دیا کہ حضور مزار میں پہلے پہنچے اور ابو بکر کی مزار کو رشک جنت بنا۔ ابو بکر نے مزین کیا اور رسول اللہ نے ابو بکر کے لیے مزار مزین کیا۔ نعرہ تکبیر، نہیں لگانا، نعرہ رسالت، ذکر ابو بکر صدیق، فضائل ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے صدیق اکبر، اب سننا، ایسے صدیق اکبر اللہ اللہ اللہ، جس کا رسول اللہ کا چہرہ جسے پڑھنے کا شرف ملے۔ ہائے 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 ہم اپنے عشق کی دھن میں کہہ رہے ہیں، ہائے ہائے، اگر لوگ کہیں گے کیا چہرہ بھی پڑھتے ہیں، میں نے کہا جسے نظر ہے وہ پڑھتے ہیں، اور جسے نہیں آتا وہ تو کتاب بھی نہیں پڑھتے۔ ہائے ہائے، یہاں تو آنے نہیں آنے کی بات ہے، کتاب بھی لوگوں کو پڑھنا نہیں آتی، جسے آتا ہے پھر وہ چہرہ بھی پڑھنا جانتا ہے۔ ہاں یہ تو صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کے غلاموں کو بھی اس صدی میں یہ شرف ہے کہ پیشانی کی سلوٹیں دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ تقریر سے متفق کتنا ہے اور منتشر کتنا ہے۔ ہاں آپ سمجھتے کیا ہیں؟ فیوز کے دریا ابھی بند نہیں ہوئے ہیں اور صفا کے چبوترے سے دل کے رشتے ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بات یہ عرض کر رہا تھا، وہ صدیق اکبر جسے رسول اللہ نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا، جنہوں نے غلام آزاد کیے، وہ صدیق اکبر جن کا ذکر قرآن میں، توریت میں، انجیل میں، جن کے لیے قرآن نے وعدہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس میں صدیق اکبر شامل ہیں، بلکہ پہلے ہیں، جسے جہنم سے آزادی کا مژدہ ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں جس کو شامل کیا گیا اور جن کے لیے اعلان کیا گیا۔ اب سننا، وہ صدیق اکبر
जन्नती होने में कोई शक है? रसूल अल्लाह जैसा मुर्शिद है। जन्नत की बशारत भी हुजूर ने दी। हुजूर जिसको जो कह दे वो हो जाए, हुजूर जिसको जो कह दे वो हो जाए। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। लेकिन अब सुनिए फिक्र आखिरत और सिद्दीक अकबर, गौर कीजिए, क्योंकि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस का मामला हो गया हमारी कौम में। हम तो फुला के मुरीद है ना मौलाना, हम जहन्नम में कैसे जाएंगे? और मुरीद भी तो बनो। बल्कि मैं तो लोगों से यही कहता हूं, लोग उसको बुरा भी मान जाते हैं, कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सरवर्दी बन गए, अशरफी बने, रजवी बने, मदारी बने, सब बने, मुसलमान भी बने क्या? जरा ये बताओ। अल्लाह बताओ ना, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान बने, सिलसिलों की डिग्रियां सच्चा मुसलमान बने बगैर नहीं मिल सकती। जो फजर की नमाज में सोता पड़ा है उसको कादरियत की डिग्री कौन देगा मेरे भाई? जो दाढ़ी मुड़ा करके गटर में फेंक रहा है, नबी की सुन्नत की तौहीन कर रहा है, उसे चिश्तियत की डिग्री कैसे मिलेगी? जो किसी औरत पर पाप की नजर डाल रहा है वो मखदूम सिमना के दामन से कैसे वाबस्ता होगा? जो सूद के गंदे लुक़मे खा रहा है उसे मदारे पाक का नाम लेने का हक कैसे हासिल है? आप मुझे बताएं, कहां हो? क्या मुसलमानों तक ये रसूल अल्लाह का फरमान नहीं पहुंचा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुक़मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया। मैं कोई सिलसिले का वल्ला मुखालिफ नहीं, जो सलासिल हक्का का मुखालिफ है वो जहन्नम का कुत्ता है। लेकिन आपसे कहता हूं, पीर की दी हुई टोपी का इतना एहतराम है कि इस्तिंजा खाने में पहन के नहीं जाते। अल्लाह के दिए हुए तोहफे का क्या एहतराम है? अल्लाह ने तो नमाज बतौर तोहफा भेजी थी ना, उसकी क्या हिफाजत है? पीर की दी हुई टोपी की तो हिफाजत है, उनकी चादर की दी हुई हिफाजत है। कफन में ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाओ, अल्लाह मुबारक करे, हमने भी संभाल के रख, बड़े तवर्रुकात, और उसी को जरिया नजात समझते हैं। लेकिन आपसे पूछता हूँ, पीर के दिए हुए तोहफे की कदर है, अल्लाह के दिए हुए तोहफे की क्या कदर है? खून के आंसू रोने का मकाम नहीं। मस्जिदें वीरान हो गई है, हजारों की तादाद में जलसे में हम लोगों को देख के खुश होते हैं, इतनी पब्लिक आ गई। ये कयामत की निशानियों में से निशानी है कि लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। ये तो निशानी है। आप हम सीना फुला रहे हैं कि इतने आ गए उतने आ गए। मेरे अजीज, मैं तो कहता हूं अल्लाह करे इससे बढ़ के आए, लेकिन अमल भी तो करें, अमल भी तो करें। अमल कहां है? सूद के धंधे मुसलमान करें। मुसलमानों सुन लो, इब्न हजर यहां तक फरमाते हैं कि सूद का धंधा करने वाले, सूद खाने वालों की कब्रों पर मैंने शबे कद्र में भी अजाब होते देखा। सूद लेने वाला उतना ही बड़ा मुजरिम, सूद देने वाला उतना बड़ा मुजरिम, सूद लिखने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला। कहां है हम? आज सूद में मुब्तला हुए, जुआ में मुब्तला हुए, जंगली रमी आज पहचान बनती जा रही है मुसलमानों की, शराब के धंधे मुसलमान। मेरे अजीज, हंसने की बात नहीं है। जिसे कयामत के दिन अल्लाह की अदालत कहते, जरा उसका तसव्वुर कर ले। अल्लाह अल्लाह, जहां कबीला, खित्ता, इलाका कुछ नहीं देखा जाएगा मेरे अजीज, वहां नमाज, रोजे, हज और ज़कात पर भी बख्शिश नहीं होगी। वहां तो हाल ये है कि खुदा जिस पर करम फरमा दे उसी का बेड़ा पार होगा। ये सिद्दीक अकबर है, सहाबा के इमाम, सहाबा के इमाम है सिद्दीक अकबर। मैं सिद्दीक अकबर के लिए क्या फजीलतें बयान करूं। अल्लाह अल्लाह, कंजुल उम्माल की रिवायत है, मेरे आका की बारगाह में हसन बिन साबित आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने लिए आपके लिए नात लिखी। सरकार ने फरमाया, हसन मेरे लिए लिखी, क्या तूने कभी मेरे अबू बकर के लिए भी कुछ लिखा? मेरे अबू बकर के शान में भी तो लिख के लाओ। अंदाजा फरमाए, जिसकी मनकबत रसूलुल्लाह लिखवाए वो कैसा वली होगा इस उम्मत का। सिद्दीक अकबर की शान क्या होगी मुसलमानों, सोचो ना जरा। और फिर जो सिद्दीक अकबर हो, सिद्दीक अकबर, और कौन सिद्दीक अकबर? कुरान उनके बारे में रसूलुल्लाह का फरमान हिकायतन नकल करता है, ला
रसूल हो। अरे उनके साथ हो जाओ तो तुम्हें भी अल्लाह रसूल का साथ मिल जाएगा, याद रखना। मगर वो सिद्दीक अकबर, अब सुनना, दिल के कानों से सुनना, माए और बहनें बैठी है तो उनकी भी तवज्जो। सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। सिद्दीक अकबर चंद साथियों के साथ जा रहे हैं। आपने देखा कि बाग के अंदर दरख्तों पर, खजूर के दरख्तों पर और बाग के अंदर चिड़िया चहचहा रही है। सिद्दीक अकबर चहचहाती हुई चिड़िया की आवाज सुनकर रो पड़े और रोने के बाद कहते हैं, ऐ चिड़ियो तुम कितनी खुशनसीब हो, ऐ चिड़ियो तुम कितनी खुशनसीब हो। ये कह के रो पड़े। साथियों ने कहा, ऐ अबू बकर आप चिड़ियों को खुशनसीब कह के रो रहे हैं? तो सिद्दीक अकबर का जवाब सुना। सिद्दीक अकबर कहते हैं, इसलिए रो रहा हूं कि कयामत के दिन इन चिड़ियों से अल्लाह इनके अमाल का हिसाब नहीं लेगा, लेकिन अबू बकर से उसके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? आपसे पूछना चाहता हूं, ये सिद्दीक अकबर हैं, आखिरत का तसव्वुर करके चिड़ियों को देख करके रो रहे हैं। आप मुझे बताओ, जिसकी रातें कुरान पढ़ते गुजरे, जिसका दिन चेहरे मुस्तफा देखते हुए गुजरे, वो सिद्दीक अकबर रो रहे हैं। अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? अपने अमाल का हिसाब क्या दूंगा? और हम तो अपने आप को कतई यकीनी जन्नती समझ बैठे, मौलाना मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जन्नत में जाएगा। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं, जन्नत में हम नहीं जाएंगे तो अल्लाह की जन्नत वीरान और खाली नजर आएगी। क्या किस्ब है, क्या झूठ, मक्र और फरेब है। मेरे अल्लाह की जन्नत आज भी वीरान नहीं है, आज भी वीरान नहीं है। सिद्दीक अकबर आखिरत की फिक्र करके रो रहे हैं। ये सिद्दीक अकबर है। बातें तो और भी बहुत सी हो सकती है उस पर। फारूक आजम, जानशीन दुवम, रसूलुल्लाह के दूसरे खलीफा। कौन फारूक आजम? जिनके बारे में सरकार अबदकरार मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते। ला नबी आबादी मगर मेरे बाद कोई नबी। कौन उमर? जिसको देख के शैतान रास्ता बदल दे। जल्दी जल्दी पढ़ा। कौन उमर? मीर अब्दुल वाहिद बेलगिरामी सबे सनाबे शरीफ में लिखते हैं, जिसका मफहूम ये है, एक मरतबा रसूलुल्लाह की बारगाह में जिब्रील अमीन मौजूद है। तवज्जो करना, जिब्रील अमीन मौजूद है। सामने से उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं। जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह उमर आ रहे हैं, आका उमर आ रहे हैं। तो सैयदना उमर को आता देखकर जब सैयदना जिब्रील ने कहा उमर आ रहे हैं, तो हुजूर खुश हुए। हुजूर खुश हुए, आका खुश हुए, सरकार खुश हुए। पता चला सहाबा का जिक्र सुनकर हुजूर खुश होते हैं। सहाबा का जिक्र सुन के हुजूर खुश होते हैं। और जिनको सहाबा का जिक्र सुन के खुशी नहीं होती, वो सोचे कि हुजूर खुश हो और तू खुश ना हो तो तू किसके मसलक पर है। इसी तरह हुजूर जिक्र अहले बैत सुनकर भी खुश होते हैं। बल्कि अहले बैत की मोहब्बत पर तो जो सिला दिया वो किसी अमल में बयान नहीं किया। साहिब तिर्मिज़ी लिखते हैं कि आका ने फरमाया, जो मुझसे अली से